face-off between the Aam Aadmi Party and the BJP continues. Now, the Aam Aadmi Party took on the centre today, specifically the BJP, accusing it of trying to topple the Delhi government by hook or by crook. That's the allegation that has been made by the Aam Aadmi Party. The BJP is using central investigating agencies against its leaders, is what the party claimed. 5 senior Aam Aadmi Party leaders in a press conference today hit out at the BJP for allegedly trying to lure their MLAs with cash or try to threaten them to switch sides to the BJP. Aam Aadmi Party's national spokesperson and Rajya Sabha MP Sanjay Singh claimed that he would expose how the BJP is using central agencies to bring down the government in the national capital. Efforts to break the MLAs of Delhi have begun, is what he said, adding that the BJP tried a shindy on the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, but the attempt failed. He claimed BJP members have threatened the Aam Aadmi Party MLAs. They have said that they can offer 20 crore rupees for them to switch sides, and if they don't, then they will be harassed like Manish Sisodia if the CBI or the ED is unleashed against them. Let me go across to Abhinandita Mathur, spokesperson of the Aam Aadmi Party. Abhinandita, first of all these claims have been made and we've been hearing these claims for the last couple of days. But is there concrete evidence that the Aam Aadmi Party will put out? Good evening. Good evening. Today in front of the country, there are two options or two possibilities. One is what is provided by Mr. Arvind Kejriwal, that is of honest politics, that is of good governance, that is of, good quality healthcare, good quality education, empowerment of women, and even taking care of the elderly through Tirth Yatra Yojnas, etc. On the other hand, we have Mr. Modi's model, which is of deceit, which is actually of buying and selling MLAs, which is actually of running the exchequer in crores of debt, which is for, Mr. Modi's governance is causing unemployment, a massive unemployment, giving our youth absolutely no hope for the future and so on. So given that this is the scenario, this is the context, we have no reason to believe why Mr. Modi is not paranoid about the Aam Aadmi Party, because in comparison, he fails really badly, and therefore, obviously, he's trying to break us. But Abhinandita, the allegations are very serious that money has been offered, threat calls have been made. But the question is, those approaching these Aam Aadmi Party MLAs from the BJP, their names have not been revealed and no other evidence has been provided. I'll come to you on that, but before that, let me go to Pramod Swami, leader of the BJP. Pramod Swami जी, बहुत संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पे. आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके नेताओं को कॉल्स आई हैं जिसमें कि उनको थ्रेट करा जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, साइड स्विच करें, वरना उनके पीछे सीबीआई और ईडी छोड़ जाएगी, या उनको 20 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया जा रहा है. इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो मैं इनको चुनौती देता हूं कि किसने इनको फोन करके बताया, उसके नंबर फ्लश करें और उस बातचीत के जो रिकॉर्डिंग है उसको वो ये करें, उसको रिलीज करें. दूसरे नंबर, जब ये मनीष सिसोदिया जी का फोन यदि सीबीआई ने सीज करके ले गई तो फिर उनको किसके नंबर पे फोन आया? 2 नंबर. और तीसरी नंबर, अभी इनके एक पुराने साथी है, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि एक समय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम पर अपने ही एमएलए लोगों को फोन करवाए थे. ये भी अभी सोशल मीडिया में भी वायरल हो चुका है, जो इनके ही एक साथी ने आरोप लगाए हैं. तो ये सिर्फ इनकी ये नीति है कि जब भी ये किसी मुसीबत में फंसते हैं तो ये इस तरह की बातें करते हैं. अभी मूल सवाल ये है कि दिल्ली में 750 ml की आरके ब्रांड की जो शराब की जो बोतल है वो 166 रुपया 73 पैसे में जिसका होलसेल प्राइस है, उसको ओल्ड जो लिक्वर पॉलिसी थी उसके तहत सरकार को 223 रुपए 79 पैसे मिलते थे. लेकिन इन्हें ये जो पॉलिसी जो लेकर के आए उसमें सरकार को सिर्फ 1 रुपया 88 पैसा. ठीक है, तो आपका कहना है कि ये पॉलिसी पे बात करें, जिस पे इन पे आरोप लगाया गया है उस विषय पे बात करें. अभिनंदिता, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट?
the BJP is... I'll come back to you, sir. Pramod Swami ji, आपके पास वापस आऊंगी. Abhinandita, they are saying that instead of responding to questions about the excise policy, about the liquor policy that had to be withdrawn by the Aam Aadmi Party, it's defecting from the subject by bringing in these allegations and claims against the BJP, which are unsubstantiated. Okay. We really truly stand by this policy, and I can actually go into a detailed debate, for a couple of hours. We can set up a time for that. अभी मामला ये है प्रमोद जी, पूरी बात ये है कि आज देश के सामने हमारे पास दो चीजें हैं. एक तो मोदी जी का मॉडल, जिन पे हमने पूरे देश ने बहुत विश्वास किया था, और हर मोड़ पे वो हमें धोखा दे रहे हैं. हर मोड़ पे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, टैक्सेस की बात हो, हमारे दूध दही पे भी टैक्स लगा दिया. और दूसरा ये जो करते हैं ना, जो पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे ये खरीद फरोख्त ऑफ एमएलए आप लोग करते हैं. और ये आप सड़क पे जाके 100 लोगों से पूछेंगे ना, 100 में से 100 आपको ये बता देंगे कि ये सच है. जो आपने महाराष्ट्र में किया, जो आपने असम में किया, जो आपने मेघालय में किया, ये सभी पूरे देश को दिख रहा है. और इस टाइम देश बहुत परेशान है. तो हमारा तो बीजेपी से ये बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज काम करें और देश को आगे बढ़ाएं. हमें नौकरियां दें, हमें स्कूल दें, हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, हमें हेल्थ केयर अच्छा दें, हमारी महिलाओं को इज्जत और अपॉर्चुनिटीज दें. और अगर आपसे ये सब नहीं हो रहा है, तो जो काम कर रहा है प्लीज उसको काम करने दें. और ये इसका जवाब दीजिए. फिर वही आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पे, बीजेपी पे. अभिनंदिता कह रही हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है एमएलए की, और इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है और स्टेट से जहां पे सरकारें पलट दी गई हैं. आप नहीं, पाप है, जनता के लिए अभिशाप है और भ्रष्टाचार का बाप है. मैंने इनसे एक सवाल किया कि जो 750 ml की आरके ब्रांड की जो बोतल थी, जिसका होलसेल प्राइस है 166 रुपये 73 पैसे, पुरानी लिक्विड पॉलिसी से सरकार को मिलते थे एक्साइज के रूप में 223 रुपये 79 पैसे. और ये जो पॉलिसी लेकर के आए, जिनको ये मैडम बहुत बढ़िया बता रही है, उससे इनको एक्साइज मिल रहा है मात्र 1 रुपया 88 पैसा. कहां सरकार को मिल रहा था 223 रुपया 79 पैसा, और अब मिल रहा है मात्र 1 रुपया 88 पैसा. वेट जो है इनके समय में नई पॉलिसी से मिल रहा है मात्र 1 रुपया 90 पैसा, और पुरानी पॉलिसी से मिल रहा था 106 रुपए. कहां 1 रुपया 90 पैसे और कहां 106 रुपए. पुरानी पॉलिसी से जो रिटेलर थे उनको लाभ मिल रहा था 33 रुपये 35 पैसे, और नई पॉलिसी से जो रिटेलर है उनकी इनकम हो गई 363 रुपए. तो ये जो आपने जो सरकार की खजाने की जो लूट की, 143 करोड़ रुपया शराब माफियों का माफ कर दिया, 2% से कमीशन 12% कर दिया, और जो सरकार को जो घाटा लगाया. लेकिन प्रमोद स्वामी जी, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि 27% रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ था. ये इनका क्लेम है. अभिनंदिता, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू ऑल दोस एलिगेशंस? एट द एंड ऑफ द डे, दिस एंटायर डिबेट हैज स्टार्टेड आफ्टर द एक्साइज पॉलिसी इशू. देखिए, ये रोज सुबह उठ के फर्जी आरोप लगाना शुरू कर देते हैं. ये बेबुनियादी आरोप हैं, ये फर्जी आरोप में सत्येंद्र जैन साहब जेल में है. आज ही नहीं, आप 7-8 साल से करते एक के बाद एक फर्जी मेरी याददाश्त चली गई, और उसका कुछ नतीजा नहीं निकलता है. प्रमोद स्वामी जी, तो बात यह है कि हम आपसे ये विनती करते हैं कि फालतू मुकदमे लगा के आम आदमी पार्टी के ऊपर वेस्ट ऑफ टाइम है आपका, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग न बिकेंगे, जनता की गाड़ी का पैसा का हिसाब देना पड़ेगा आपको. और जहां तक ये राजनीतिक आपने हमें ये आप बच नहीं सकते. आप दिल्ली मॉडल हमें बता रहे थे, आप दिल्ली मॉडल हमें बता रहे थे, सिसोदिया जी भी जेल जाएंगे. आप दिल्ली मॉडल हमें बता रहे थे प्रमोद जी. आपका तो मॉडल देख लिया भैया, भ्रष्टाचारी मॉडल है. आपका मॉडल है, जो अपोज करेगा वो जीत जाएगा, लेकिन मुझसे डर नहीं लगता है. Let Abhinandita speak, sir. Let Abhinandita speak. One at a time, sir. I'm requesting you one at a time, because otherwise we won't make sense of this discussion at all. Abhinandita, you respond to the points that have been raised by Pramod Swami. He is saying that answer questions on the liquor policy before you come down to allegations about your MLAs being bought, or the possibility of them being bought by the BJP, as has been alleged. Look, we have been answering questions pretty
openly about the liquor policy, and in your own newsroom and on other channels as well. Now they have made an allegation, and we are refuting it. And now the CABI is making the investigation. What is there for me to answer? But at the same time, they must know that the people of this country are all watching them, and they know that all these cases against a very able leader, a very special leader, a very important leader like Mr. Manish Sisodia are just going to be proven to be bogus. He has pointed out about, the Kejriwal model or the Delhi model that he gave a list of. Let me tell him what is the Modi model right now? What is the Bhajpa model? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जी आपके रक्षा सौदे में रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, शहीदों के ताबूतों पर आप कमीशन खाते हैं, येदुरप्पा जी को आपने दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दिया, वो चमत्कार से वो एकदम ऑनेस्ट हो जाते हैं। नीरव मोदी को किसने भगाया आप ये बताइए? DHFL ने जो 34 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और जो फिर बीजेपी की पॉकेट गर्म की गई, वो कैसे हुई? तो जो ईडी और सीबीआई को आप सिलेक्टिवली इधर उधर भेज रहे हैं ना, एक छापा आप बीजेपी के ऑफिस में लगा लीजिए। लेट प्रमोद स्वामी रिस्पॉन्ड टू दैट। प्रमोद स्वामी, बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो एकदम से एक वॉशिंग मशीन से निकल के एकदम उनके सारे करप्शन के स्टेन्स हट जाते हैं। इसका जवाब दीजिए। इन्होंने 2-3 प्रश्न उठाए, मैं उनका जवाब देता हूँ। नीरव मोदी, विजय माल्या का नाम दिया, उनको लोन हमने नहीं दिया, यूपीए सरकार ने दिया। और विजय माल्या ने खुद कहा है कि जितना पैसा मैंने बैंक से लिया था उससे ज्यादा पैसा जो सरकार को मैं ऑलरेडी सरकार मेरा कुर कर चुकी है, मैं सरकार को दे मैंने विजय माल्या जी का नाम नहीं लिया, वो आप ही ने लिया। ठीक है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि एलिगेशंस की, जब भी इन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, इनके मंत्री ऑलरेडी सत्येंद्र जैन साहब जो है, जिनकी भी केजरीवाल साहब बहुत तारीफ करते थे, आज वो जेल में है। और जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई। और अब उनको भी केजरीवाल साहब बहुत ईमानदार बताते थे, और मनीष सिसोदिया के लिए कह रहे हैं कि इनको भारत रत्न देना चाहिए, केजरीवाल जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और हो सकता है तो उनको राष्ट्रपिता भी घोषित कर सकते हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ही एक पुराने साथी ने कहा है कि एक समय ऐसा था जब केजरीवाल जी ने स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम लेकर करके आपके नेताओं को फोन करवाए थे। आपने अरुण जेटली जी पे इंजाम लगाए, आपने नितिन गडकरी जी से पे इंजाम लगाए, बाप से आपने माफी मांगी। आज मैं टेलीविजन चैनल पर चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने आपको ऑफर दिया, आप उसको सार्वजनिक करिए। आप सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे। That's a fair point that has been raised across board, that if such a serious allegation is being made, produce the evidence. We will produce the evidence in good time and soon, and when the time is right. But there is no confusion. There is no confusion. There is no doubt in anybody's mind today. If you question the people of the country, if you talk to them, there is no doubt that BJP is very capable and has been doing this murder of democracy by actually buying and selling MLAs in a very unprecedented way. It is very serious. Our request is that, Modi ji should stop this, business. We all have to actually work together to form this, make this country number one. Mr. Kejriwal and people at the Aam Aadmi Party have decided to do that. One important thing also is that, if they do want to compete with the Aam Aadmi Party, if they do want to compete with Mr. Arvind Kejriwal, then they should compete on merit. Compete with us on schools, compete with us on healthcare, compete with us on a vision. All right. And that competition perhaps, Anandita, is going to play out as Aam Aadmi Party is hoping in Gujarat, where they believe, or rather your party believes, that you can make a further inroads into that state in this elections. Abhinandita and Pramod Swami, both of you, many thanks for joining us here on the discussion.